I hope it is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right, so let's start with this. So first of all, any problem in the basic thing we have done in the last one or two, three classes? Any problem in those? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. So everything related to equations and graphs are clear. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Very good, very good. So today we are starting with the QT syllabus. Let me start with the thing like statistics. The QT syllabus is actually divided into two modules. I'll share the syllabus with you just after this class by end of today. In that syllabus, the two modules are there. In one module, there are around six different topics, and in the second module again there are 4 5 different topics. So out of that second module, I have started with this introduction to statistics. Now you must be thinking, sir, first module छोड़ के second से क्यों start किया? The reason is that this is a basic thing. This is the basic concept of statistics जो हमें पता होना चाहिए, and it will actually boost your confidence in the subject. That yes, अगर मैं फर्स्ट मॉड्यूल के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करता तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा. So इसलिए we are starting with the basic topic, and that is the only thing I am starting with this introduction to statistics. So let's start with this. So yes, I hope many of you are either from BBA or BCom background. So you must have studied statistics, and if you are not from that background, that is also okay. We have studied some part of statistics in our school time. स्कूल में पढ़ा है हमने. Yes, sir. Yes, sir. In 9th and 10th. Right? Yes, sir. I mean, जो लोग कॉमर्स से हैं, बीबीए बीकॉम से हैं, उन्होंने तो पढ़ा ही होगा. बट जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है, साइंस से हैं या फिर आर्ट से हैं, they have also studied it in 10th standard, 9th standard और sometimes 11th and 12th also. तो वही है statistics. तो दो basic definition we are starting with. The first definition is the science of statistics can be viewed as the application of the scientific method in the analysis of numerical data for the purpose of making rational decisions. So the three keywords which we can take it from here is that it is the application of scientific method in the analysis of numerical data for the purpose of making rational decisions. Again, I'm saying it is the scientific method, application of the scientific method in the analysis of numerical data for the purpose of making rational decisions. So you need to take certain decisions. You need to take certain justified decisions related to
मे बी सम प्रॉब्लम, कुछ बिजनेस प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आपके सोसाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं, जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढना चाहते हैं. सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड. व्हाई दे आर कॉलिंग इट साइंटिफिक मेथड? दैट मैनी ऑफ द technical softwares, many of the different methods of statistics are being used, many of the statistical tools use होते हैं. So it is the application of those statistical tools for the analysis of numerical data. Numerical data वही जो आपके पास में होता है, जैसे if you remember हमने mean median mode किया, so in that we had that data x given होता है, frequency given होती है, you have एक को आप x लेते थे, एक को f लेते थे. लेट मी ड्रॉ वन टेबल. इस तरह से हम करते थे. याद आ रहा है किसी को? Yes, sir. Like sir, Yes, x sir. bar is equal to sigma fx upon sigma f, है ना? Yes, sir. These things we used to do, हम लोग करते थे. Yes, sir. So that is related to numerical data. And what is the purpose? Objective क्या है? Decision making. हम लोग कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, हम लोग कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल डेटा के एनालिसिस से, उसके एनालिसिस से हम लोग कुछ पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहते हैं. सो द होल सोल पर्पस इज डिसीजन मेकिंग. सेकंड डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन. वेट अ सेकंड. May be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. So यहाँ से क्या words निकले? First of all collect the data, then make it presentable, उसको presentable बनाइए, then put some analysis, कुछ analytical tools का use करके, and then interpretation. First of all you will collect the data. Now collection of data means जैसे door to door survey में कई बार सर यूज करते हैं, हमारा जो ये पॉपुलेशन की कैलकुलेशन होती है उसके लिए लोग हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछने आते हैं. आप यू मस्ट हैव सीन दैट. सो वो लोग कल डेटा कलेक्ट करते हैं. अब कलेक्शन ऑफ डेटा डायरेक्ट एनालिसिस पे नहीं जाता. यू नीड टू गो विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. अब प्रेजेंटेशन मींस मेक दैट डेटा प्रेजेंटेबल, मेक दैट डेटा प्रेजेंटेबल. अब प्रेजेंटेबल इन द सेंस, जैसे ये जो आपको एग्जामिनेशन में टेबल्स गिवन होती थी, दिस इज एक्चुअली मेकिंग द प्रेजेंटेबल. टेबुलर फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना, ग्राफिकल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना, दिस इज मेकिंग दैट रॉ डेटा. वो जो डेटा आपने सब जगह अपना क्वेश्चन फिल करवा के कलेक्ट किया है, उस डेटा को आप एक्चुअली इन टेबल्स और ग्राफ्स की फॉर्म से आप उसको प्रेजेंटेबल बनाते हो, ताकि वो समझ में आए कि हाँ ये डेटा किस चीज से रिलेटेड है. एंड देन उन पर्टिकुलर डेटा पे आप कुछ एनालिसिस परफॉर्म करते हो. एनालिसिस कैसे? जैसे यहाँ पे हमने ये x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, हमने मीन निकाला. सब ये सब हम सीखे, डोंट वरी. आज ये थ्योरेटिकल क्लास है, बट देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिकल थिंग्स, तो सब क्लियर हो जाएगा. मीन मैंने निकाला, ये एक एनालिसिस हो गया. आपका इंटरप्रिटेशन, सपोज इसका मीन कुछ भी आया, सपोज मैं एक किसी की जो है सैलरी के डेटा पे काम कर रहा था, और उस सैलरी के डेटा से मेरे पास ये आया दैट x बार इज इक्वल टू लेट सपोज 25,000. मेरे पास x बार जो है वो 25,000 आया. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस x बार इज इक्वल टू 25,000? वो आता है इंटरप्रिटेशन की स्टेज में. सो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली क्या है? इट इज कलेक्शन, presentation, analysis, interpretation of numerical data. It can be, ये डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सिंपल लगती है. दैट स्टैटिस्टिक्स होती है सर, स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. इसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स एज अ टॉपिक, टूल, चीज यहाँ तक प्रॉफिट. हेलो यस सर, आपकी वॉइस में दिक्कत आ रही है, लाइक वो कट कट के आ रही है.
एक मिनट, लेट मी चेक द कनेक्शन। ये सबके साथ ही हो रहा है? जी जी सर। Yes, sir. वेट अ सेकंड, लेट मी रीसेट। Might be because the network is a bit low. Okay, I hope it will work now. Okay, so whatever is coming on the screen, जो भी स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है, मीन स्टैटिस्टिकल, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की? Any problem in this? नो सर। No, sir. No problem. नो सर। Okay. No, sir. Okay. All right. All right. All right. I hope my voice is better now. I mean, the connection has reset. यस सर। So I think now it might work. Okay. Very good. Very good. Fine. So now we have started everything in the definition of statistics. जो भी हमने definition करी उसमें हमने एक word use किया बहुत ज्यादा, data, data, data. Now we need to understand data क्या होता है। सबसे पहले whenever जब भी आप statistics को पढ़ने जाएंगे या आगे पढ़ाने जाएंगे, ऑलवेज स्टार्ट, और आप कोई से भी स्टैटिस्टिक्स के किसी भी लेक्चर को सुनिएगा, कहीं भी आप देखेंगे, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट डेटा in the beginning, and they will end their lecture with using this word data. So actually statistics, the foundation of statistics is data. If there is no data, there is no statistics. Now that data can be of different types, which we'll understand, जो कि हम पढ़ेंगे कि डेटा किस किस टाइप का हो सकता है, कौन कौन से टाइप्स का हो सकता है, but that data can be is the actually is the foundation of statistical analysis. वही चीज यहाँ लिखी हुई है, there is nothing technical, that data is the foundation of any statistical analysis. Without data there is no analysis. It is the accuracy of सर data which largely decides सर आपका वॉइस how कट रहा है सर। accurate। अगेन बेटा, आई थिंक अब तो नेटवर्क ठीक है। ये क्या सबके साथ हो रहा है मेरे यहाँ ना? तो बेटा सारे सिग्नल्स। सर नहीं कट ही रहा है। हाँ कट रहा है, मैं सबके साथ ही हो रहा है, मेरा सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है सर। ओके, कैन एनीवन? नहीं ठीक है, अभी सही है, अभी सही है। नहीं ठीक है। नहीं, आई विल ट्राई, बट ये सब सर प्रॉब्लम एक्चुअली आगे कनेक्शन ये इशू हो सब रहा है शायद, then मतलब आपका वॉइस स्टेबल नहीं है। हाँ कभी कभी हो रहा है, ओके, सम टाइम। ठीक है, आप बट बोलिए सर। एक्चुअली हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, नॉट एन इशू। आई अगेन रीसेट, बट एज पर माय व्हाट वी से, दिस मॉडेम, द नेटवर्क इज परफेक्ट, इट इज शोइंग ऑल द सिग्नल्स। इसलिए मैंने बोला, जब आपने फर्स्ट टाइम बोला था इट वाज शोइंग वीक सिग्नल्स, बट नाउ इट इज वर्किंग परफेक्ट। सो आई रियली डोंट नो, लेट मी अगेन चेक इट वंस अगेन, वेट, गिव मी 1 minute। नहीं सर, वी अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इतना मतलब नेटवर्क का इशू हो रहा है, ओनली क्लास में नहीं, मतलब बाकी चीज में भी ये इशू हो रहा है। ठीक है, आप बोलिए सर, बाद में नहीं तो रिकॉर्डिंग देख नहीं लेंगे। नहीं, बट हाँ, नो इश्यूज, बट यस यस, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी कि आप सबको मेरी वॉइस पहुंचनी चाहिए। ओके, so the second thing is accuracy of the data, which largely decides how accurate the result of the analysis will be. ये लाइन समझ आई? इस लाइन का मीनिंग क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? बताया।
What do we actually mean by this? Yes, anyone, please respond. डेटा ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन जो एनालाइज किया जाता है, आई थिंक. Okay. Others, what do we actually mean by this second line? Again, I'm saying it is the accuracy of the data which largely decides how accurate the results of the analysis will be. सर जो What do we mean by this? एनालाइज जो करने के डेटा होता है लाइक जो डेटा होता है उससे ही आपका रिजल्ट आएगा. लाइक किस अकॉर्डिंग आपका डेटा है, तो वो एक्यूरेट डिसाइड जो डेटा होता है वो डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कितना एनालाइज करता है. मतलब डेटा जो है एनालाइज कितना अच्छा करने, होता है। डेटा जो है एनालाइज करने के बाद जो एक्यूरेट रिजल्ट आता है, जो मतलब फाइनल रिजल्ट आता है. Sir, I think वो डिपेंड करता है. sir, Yes. I think it is closeness to the true value. Close as much as close to true value, it is more accurate. Exactly. Whatever you all said, it is totally perfect. That this second point is actually justifying the first point. This point is actually related to this. You said that data is the foundation of any statistical analysis. Now, since it is the foundation of statistical analysis, so the accuracy of that data, वो data जितना accurate होगा, उसी के according आपके result of your analysis will be accurate. The more accurate your data will be, the more will be the accuracy of your result. जितना अच्छा आपका एक्यूरेसी डेटा की होगी, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा. जैसे हम कहते हैं ना, एग्जामिनेशन में जितनी अच्छी प्रिपरेशन आपकी होगी, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, और जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा. सो इट इज लाइक दैट कि डेटा जितना एक्यूरेसी से आप कलेक्ट करोगे, जितना ऑनेस्टी से आप कलेक्ट करोगे, जितना अनबायस्ड, एक वर्ड चलता है बायस्ड एंड अनबायस्ड, सुना है किसी ने? अनबायस्ड एंड बायस्ड. यस सर. हमारा डेटा कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड या बायस्ड? Sir, unbiased. Unbiased, right? Because biased data is sort of biased और unbiased को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे we can say कि आप तो हमेशा उसको ही फेवर करते हो, आप कभी हमारे आप फेवर लेते ही नहीं हो, आप सही चीज देखते नहीं हो, आप तो बस केवल उसी की बातें मानते हो. So if this is the thing, that means it is biasness, it is favoritism. The data should not be biased. The data should not be based on some favoritism done by you, by the person who is collecting data. जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बायस नहीं होने चाहिए कि नहीं मैं तो ये रिजल्ट आना चाहता हूँ. सपोज हम कहते हैं दैट साइंस में देयर इज अ जी. सो जी की वैल्यू होती है, कितनी होती है सुरोजीत? व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ जी? 6.64 into 10 to the power minus 34. No. 9. This is 9.8. And I'm talking about capital G. I'm talking about capital I am G. talking about small g. Okay, 9.8. Right, very good. So 9.8. Now when you are doing a practical, जिन लोगों को ये नहीं पता, don't worry, I have just taken one example. आप example सुनिए कि कुछ भी है, let's suppose something is g और उसकी आइडियल वैल्यू है 9.8. अब आप उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसके प्रैक्टिकल में जो एक्चुअल रीडिंग्स आ रही है वो ना लेकर आप ये माइंड में बैठा के चल रहे हैं कि मुझे तो फाइनल रिजल्ट जो है वो 9.8 लाना है. तो वो जो प्रैक्टिकल आपका होगा, वो जो डेटा कलेक्शन आपका होगा, दैट विल टोटली बी बायस्ड, क्योंकि आपने एक्चुअल कैलकुलेशन करी ही नहीं. जैसे और एग्जांपल लीजिए, जो हमारा ये वेदर का डिपार्टमेंट है जो बताते हैं कि इतनी बारिश होगी, इतनी होगी, तो वो लोग कुछ एनालिसिस करते हैं और वो एनालिसिस जो होता है वो प्रीवियस ईयर के डेटा पे बेस्ड होता है कि लास्ट ईयर इतनी बारिश हुई थी, उसी को वो बेस बना लेते हैं. अब वो एक माइंड में बिठा लें कि हमें तो ये रिजल्ट निकालना है कि इस साल मोर देन एवरेज बारिश होगी, द रेन विल बी मोर देन एवरेज.
Now, if this is the case, in this case, the data, the analysis will totally be based on biasness. It will totally be biased. Because आपने पहले से ही रिजल्ट को अपने माइंड में बिठा लिया that there will be more than average rainfall. तो ये तो बायसनेस हो गई. आप एक्चुअली डेटा देखते, एक्चुअल डेटा निकालते, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो आपने एनालिसिस किया उससे तो ये रिजल्ट आ रहा था कि इस साल जो है वो बिलो एवरेज रेनफॉल है. बट सिंस आपने कहा कि नहीं, हमें तो अच्छी चीजें दिखानी है, और आपने कहा कि नहीं, इट इज मोर देन एवरेज. सो दिस इज व्हाट बायसनेस. तो डेटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा बायस्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज डेटा इज द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और उसी के बेसिस पे, उसी की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कितना एक्यूरेट होगा. आई थिंक वी हैव डन इनफ डिस्कशन ऑन दैट. एनी प्रॉब्लम अभी तक जो पढ़ा उसमें बेटा? नो सर. सोमा, मेरी आवाज आ रही है ठीक ठीक? जी सर, जी सर. Okay, okay. Good to hear this. Okay, so now the classification of data. अब डेटा के बारे में पढ़ तो लिया कि डेटा फाउंडेशन होता है, डेटा एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. डेटा कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग 4 क्राइटेरिया. द मेजर क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिनके बेसिस पे डेटा कैटेगराइज किया जाता है, जिनके बेसिस पे डेटा क्लासिफाई किया जाता है, दोज क्राइटेरिया, वो 4 तरह के क्राइटेरिया होते हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया इज ज्योग्राफिकल डेटा, सेकंड इज क्रोनोलॉजिकल डेटा, थर्ड इज क्वालिटेटिव डेटा, एंड फोर्थ इज क्वांटिटेटिव डेटा. अगेन आई एम सेइंग ज्योग्राफिकल, chronological, qualitative, and quantitative. These are the 4 broad categories of the data. अब आप बताइए ज्योग्राफिकल डेटा किस तरह का डेटा हो सकता है? लेट सपोज मैंने डिटेल नहीं बताई, आपको केवल नाम पता चल गए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बताइए, देखें ज्योग्राफिकल डेटा किस तरह का डेटा हो सकता है? सर लाइक टेम्परेचर जियोग्राफिकल हो सकता है. About the location, the maps, about the geographical जो चीज़ Soma है. said it is related to location. Very good. Okay. Someone else was also saying something. एक बार वापस बोलेंगे प्लीज. लोकेशन एंड लाइक टेम्परेचर, ये भी तो हो सकता है ना. Temperature. Yeah, when you are collecting the data related to temperature of different locations, it can be Yes, called sir. as geographical data. बिल्कुल, Yes. बिल्कुल. Perfect. हाँ, और Sir, latitude and longitude about that place location. सुरोजीत के आंसर हमेशा साइंस पे बेस्ड होते हैं, है ना? very good beta. Yes, nice, good example. So geographical data is based on the data which is related to location, or some geographical location, some geographical area. So the basic thing related to this is this. Okay, what about chronological data? Sir, time. Based Okay, on based the, on time. Good. Any example apart from Surojit के अलावा बताइए कि chronological data का कोई example? Sir, year, month, days. सर हो गया, बट कोई एग्जांपल सर डेटा हम कैसा लोग का होगा? हाँ सर, हम लोग का जो रिज्यूम होता है उसमें भी एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम बोल के एक आता है, जैसे फंक्शनल रिज्यूम, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम. वो भी एक मतलब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपको कितना एक्सपीरियंस हुआ, वो क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ. अगेन कॉन्सेप्ट वही हो गया ना, टाइम बेस्ड. यस सर. बताइए एग्जाम्पल बताइए. योगेश, सुष्मिता, दीपक, जागृति, मिताक्षी, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटा? एनी एग्जाम्पल, थिंक अबाउट इट. इट इज बेस्ड ऑन टाइम, ये क्लियर हो गया दैट क्रोनोलॉजिकल डेटा इज बेसिकली बेस्ड ऑन टाइम. द डेटा विच इज बेस्ड ऑन टाइम,
अब टाइम कैन बी इन ईयर्स, मंथ्स, डेज, वीक्स, आवर्स, सर व्हाटएवर इट इज, बट एक यस, स्टेशन में ट्रेन कब आएगा, वो जो एक टाइमिंग का डेटा होता है ना उन लोगों के पास, तो ये भी तो हो सकता है, ट्रेन फ्लाइट स्टेशन पे टाइमिंग। टाइम, ओके, चलिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजिकल डेटा, बहुत सारे। आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करिए, माइंड को दौड़ाइए, उसको काम पे लगाइए थोड़ा। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल डेटा? सर आपका यस, कार्बन डेटिंग भी तो हो सकता है एक क्रोनोलॉजिकल, जैसे आप किसी मतलब स्पेसिफिक चीज का आप ईयर्स कितना है मालूम करना है, क्रोनोलॉजिकल एक तरह से कार्बन डेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बट वी वी वांट सम जनरल एग्जांपल, आई वांट सम जनरल सर जनरल लाइक एग्जांपल। आप डेली लाइफ में ना, जैसे आप कितना मिल्क ले रहे हो या फिर मतलब क्वांटिटी, लाइक सर वेरी गुड। प्रोग्रेस। Consumption of milk in last 12 months, let's suppose. जैसे That is again chronological. Yes, yes. सर सक्सेस, प्रोग्रेस, मतलब कितना आप लाइफ में सक्सेस हो रहे हो, वो भी तो वो डिपेंड, मतलब हाँ, उसके योर ऊपर भी। ग्रोथ, आपकी ग्रोथ, योर ग्रोथ, जैसे ग्रोथ, इंटरव्यू हाँ में हाँ, पूछा जाता है ग्रोथ कि आफ्टर 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 5 5 years इयर्स आप आप। कहाँ अपने आप हाँ को देखते हो? मतलब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो आप ये कह सकते हो कि लास्ट 5 years में आपने क्या क्या अचीव किया। सो अगेन वो टाइम बेस्ड डेटा है, सो यस, दैट कैन बी और क्रोनोलॉजिकल। एक्सपीरियंस ऑल्सो सर, मतलब एक्सपीरियंस भी तो वो हम्म। मतलब मैटर करता है, मतलब कि ग्रोथ के साथ भी तो एक्सपीरियंस, मतलब दोनों साथ साथ ही चलता है। तो एम आई राइट, मतलब बिल्कुल मुझे बिल्कुल, लगता है मैं सही नहीं नहीं हूँ नहीं, कि नहीं सर? परफेक्ट, टाइम के साथ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो भी डेटा आप टाइम के बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हो, जिस हाँ भी डेटा में आपने एक कॉलम बना रखा है जिसमें किसी ना किसी तरह से टाइम लिखा हुआ है, दैट टाइम कैन बी ईयर्स, दैट टाइम कैन बी मंथ्स, दैट टाइम कैन बी इन डेज, वीक्स, आवर्स, मिनट्स, व्हाट एवर इट इज, दैट इज क्रोनोलॉजिकल डेटा। जी जी। ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल मैं बताता हूं कि सपोज यू आर एनालाइजिंग कि आप मारुति सुजुकी की स्टडी कर रहे हो, और पिछले 15 साल में इनकी हर अलग अलग ब्रांड की कार्स की क्या सेल्स रही है। लास्ट फिफ्टीन कितना ईयर्स प्रोग्रेस, में हाँ कितना इनकी प्रोग्रेस सेल्स हुआ क्या है, रही है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स कितने तक, मैंने कहाँ से स्टार्ट हुआ था कहाँ तक गया है, वही एक जो एग्जैक्टली, टोटल 15 कंपनी का ईयर्स प्रॉफिट का। कितना हुआ है लास्ट 15 years में, हर साल का प्रॉफिट आपने लिखा, और फिर आप उसका एक ग्राफ बना रहे हो कि उनका जो प्रॉफिट है वो अपवर्ड ट्रेंड में है। अपवर्ड ट्रेंड इन द सेंस, सपोज आपने उनका ग्राफ बनाया और वो कुछ इस तरह से आया, तो आप कहोगे, और यहाँ पे आ गया टाइम, और यहाँ आ गए ईयर्स, अलग अलग हर साल आपने यहाँ लिख दिया। लेट सपोज 2001, 2, 3, 4, पिछले 20 years का डेटा आप ले रहे हो, और ग्राफ अगर कुछ इस तरह से आ रहा है, तो आप कहोगे सर एवरी ईयर, सॉरी यहाँ पे ईयर्स नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, सो प्रॉफिट विल कम ओवर हियर, टाइम इज देयर, सो एवरी ईयर बाय द एडिशन ऑफ वन मोर ईयर द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब दैट ग्राफ कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, कि सर कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी बढ़ रहा है, अब फ्लैट हो गया है। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ तक गया, वहां से फिर कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुई नेक्स्ट ईयर, और वो यहाँ तक आ गया डाउन, फिर यहाँ तक इंक्रीज हुआ, अगेन इट हैज कम डाउन, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डाउन, और अब सर अभी का देखते हैं तो इट इज लाइक फ्लैट। पिछले 2-3 साल से इट इज टोटली फ्लैट, बिल्कुल एक स्टैग्नेंट हो गया है कि इतना ही प्रॉफिट आ रहा है, लास्ट 3 ईयर से सेम आ रहा है, कांस्टेंट हो गया है। ये एक आपका क्रोनोलॉजिकल डेटा का ग्राफ हो गया। उसी तरह से सपोज आपने कहा कि लेट सपोज कि जो नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट्स आपने लिया, तो यहाँ पे टाइम लिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ ले लिया वाई एक्सिस पे, तो और वो आपने कहा कि धीरे धीरे इंक्रीज हुआ था, बट सर अभी पिछले 3-4 महीने में इट्स अ डाउनफॉल। तो डाउनफॉल क्यों आया? बिकॉज सर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर ज्यादा नहीं निकले, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में कमी आई, और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम हुए तो क्या हुआ,
नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट्स कम हो गई। जैसा आपने सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सिंस द टाइम द लॉकडाउन हैज बीन इम्पोज्ड फ्रॉम मार्च, तो उन 2-3 महीने में नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट्स बहुत कम हो गई थी। राइट, न्यूज़पेपर में आता था ये, जी आपने जी। अगर ध्यान दिया हो तो। एंड दैट इज इवन जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो होता था, एग्जैक्टली वो भी एग्जैक्टली, मैं वही बहुत एग्जांपल। मात्रा में कम हो गया है। बिल्कुल, अब तो वापस इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्राइंग टू कम अप अगेन, सो इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग नाउ। बट यस, देयर वाज अ टाइम जब बहुत बहुत ज्यादा, आपने अगर सोशल मीडिया पे भी देखा हो तो जालंधर का एक फोटो भी वायरल हुआ था, जहां से हिमाचल की पहाड़ियां मतलब बहुत सालों बाद जालंधर की छत से ही लोगों को दिखने लगी थी, सो दैट पंजाब से ही। सो दैट इज समथिंग जो एक लर्निंग हुई लॉकडाउन से, कि अगर हम इस तरह का कुछ प्रोसेस, एक लेट सपोज मंथ में हम केवल एक ही दिन ऐसा बना लें जिसपे नोबडी विल यूज एनी व्हीकल, नोबडी विल यूज एनीथिंग विच इज इंक्रीजिंग एक्चुअली पॉल्यूशन, तो इट कैन मेक एन इम्पैक्ट, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है ना। सो सच काइंड ऑफ डेटा विल बी कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल डेटा। नाउ क्वालिटेटिव डेटा, बेटा क्वालिटेटिव डेटा जो है डेटा वो होता है जिसमें एक्चुअली हम बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात करते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट इन द सेंस टैलेंट, माने क्वालिटी, तुम यू हैव हाउ हाँ, मच एट्रीब्यूट्स की बात करते एग्जैक्टली। हैं। वो एट्रीब्यूट्स समथिंग जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप जैसे सपोज मैं बोलूं कि लेट से कि इफ आई आस्क सोमा हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, तो ये नॉन ऐसे थोड़ी काउंटेबल। बता सकते हैं कि सर आई हाँ एम जी 100 मीटर कॉन्फिडेंट और आई एम 1 kg कॉन्फिडेंट। नो, यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट, राइट, इट्स एन एट्रीब्यूट। ठीक है, समझ आया एग्जाम्पल से? जी 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 जी। right? So when we are taking the data related to certain attribute, और example लीजिए, suppose I am taking a data of checking the effectiveness of a training। मैंने एक ट्रेनिंग दी अपने एम्प्लॉयज को, तो उनकी ट्रेनिंग से पहले उनका वर्क में क्या परफॉर्मेंस थी और ट्रेनिंग के बाद में उनके वर्क में क्या परफॉर्मेंस आई, दोनों का मैं वो देख रहा हूँ, एक्चुअली डिफरेंस देख रहा हूँ। उससे मुझे पता चलेगा जो ट्रेनिंग मैंने इनकी कराई उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। अगेन इट इज related to some attribute, it is related to some qualitative aspects, so वो qualitative data हो जाता है। quantitative data नाम से पता चल रहा है, all numerical data, सारा न्यूमेरिकल डेटा। जैसे हम बात करें कि हम केवल ये एनालाइज कर रहे हैं कि यूईएम के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या है। अब यूईएम के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या है, तो हाइट को आप मेजर कर सकते हो ना, यू कैन टेल कि दिस इज द हाइट ऑफ दिस स्टूडेंट, दिस इज द हाइट ऑफ दिस स्टूडेंट, तो आप सारे स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा आप ले रहे हो। बट इट इज ऑल्सो, इट इज अगेन एट्रीब्यूट, लेकिन ये क्वांटिफाई कर सकते हो ना आप इसको मेजर कर सकते हो। हाइट हो गया, वेट हो गया, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी इट कैन बी शोन इन सम यूनिट, किसी यूनिट में आप इसको बता सकते हो, किलोग्राम में हो गया, हाइट आपके जो है सेंटीमीटर्स में हो गई, फीट फुट में हो गई, इंचेस में हो गई। सो ये इस तरह का जो डेटा होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा। No, sir. नो सर। नो प्रॉब्लम? नो सर। Okay, No, sir. very good, very good. So first is geographical data. Geographical data ब्रैकेट में ही वही चीज लिखी हुई है जो हमने अभी पिछले 10 मिनट में डिस्कस करी, एरिया वाइज डेटा, द डेटा विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ geographical differences between the items is called as geographical data. एग्जाम्पल आपके सामने है। Suppose I have collected the data of population of 4 states, Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, and I have taken this data. So this data is geographical data. Why?
बिकॉज सर आपने अपना डेटा जो है वो कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज गुजरात इज अनदर ज्योग्राफिकल लोकेशन, राजस्थान इज अनदर ज्योग्राफिकल लोकेशन, उत्तर प्रदेश इज डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, एंड वेस्ट बंगाल इज अनदर डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन. So that data is called as geographical data. Any problem beta इसमें? No, sir. No, sir. Okay. Then chronological data, time-wise data. The data which are classified on the basis of time, years, months, weeks, differences between the item. ये आ गया. Again, population का data ही है. But आप देखिए, now it has changed. Previous slide में we have used the data related to different location. That is why it is called as geographical data. Population का ही data था, लेकिन geographical location पे था. यहाँ पे हमने एक data ले लिया और इंडिया की population का data है, but now it is based on टाइम. 1995 में क्या था, 2000 में क्या था, 2005 में क्या था, 2010 में, 15 में, 20 में. नाउ वन थिंग आई वांट टू मेंशन ओवर हियर, बिकॉज सिंस यू गाइस आर एमबीए स्टूडेंट्स, आपको ये चीज पता होनी चाहिए जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो करता हूं और मैंने भी एमबीए में आने के बाद ही सीखी थी. दिस इज, ये दिख रहा है सबको? जी बिल्कुल. सोर्स. whenever you are quoting a data या कोई इमेज जो आपने कहीं से ली है, स्पेशली गूगल से ही लोगे, you should always mention the source of that, the source of that data, the source of that image. It is always advisable and you can say it is mandatory. Whenever you are quoting any data in your presentation, whenever you are quoting any data in your report, you should mention the source of that data. Please mention the source of that data. So that, yes. सर मुझे लगा आप पॉपुलेशन की बात करें, मतलब ये मैंने क्यों जानना मैंडेट है कि सोर्स मैंने आपने कहाँ से डेटा लिया है? I am coming on that. Suppose you are giving a professional presentation somewhere in your office and you have mentioned a data. Now अब उस डेटा में सपोज आपने सोर्स मेंशन नहीं किया है, मान लो मैंने यहाँ सोर्स मेंशन नहीं किया, लेट्स सपोज. अब आप उस प्रेजेंटेशन के बाद में मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दी और मैंने सोर्स मेंशन नहीं किया, या वहां पे आप बैठे हैं जिनको पॉपुलेशन का एक एक डेटा पता है और मैंने कुछ डेटा इसमें गड़बड़ कर दिया, तो अगर सोर्स वहां नहीं है तो इस पूरे डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी. सबसे नॉर्मल रीजन मैं बताता हूं आपको कि ये डेटा आप कह रहे हो मैंने बनाया है और उसी टाइम पे आप उठे और कोई दूसरा जो भी ऑडियंस में से उठे और उन्होंने कहा दिस डेटा इज फेक, द एक्चुअल डेटा इज दिस. सो इफ आई एम मेंशनिंग द सोर्स कि I don't know, but I have taken it from United States Census Bureau, World Bank as of 1st January 2020. Today it is 26th of August 2020. Now when I am quoting this presentation after almost 8 months, population increase हुई होगी ना 2020 की? जी बिल्कुल. ये तो मानते हो सब? Yes, अब बिल्कुल. अगर मैं ये मेंशन नहीं करता तो आप बोलते कि सर मैंने अभी अभी गूगल किया है और 2020 की पॉपुलेशन तो ये नहीं है इंडिया की. अब मेरे पास क्या जवाब होता? मैं कहता आई एम सॉरी, बट सिंस आई हैव मेंशन्ड बाय पुटिंग दिस स्टार ओवर हियर दैट आई हैव टेकन दिस पॉपुलेशन एज ऑफ 1st January 2020, और अब एज ऑफ 1st January 2020 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो, वर्ल्ड बैंक का डेटा उठा लीजिए, आपको ये ही पॉपुलेशन इंडिया की मिलेगी वहां पे. तो व्हेन आई एम मेंशनिंग, सोमा आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, व्हेन आई एम मेंशनिंग सोर्स, जब मैं सोर्स मेंशन कर रहा हूं किसी भी इमेज का, किसी भी डेटा का, तो मैं एक तरह से अपने लिए आगे आने वाली प्रॉब्लम को क्लियर कर रहा हूं कि सर ये डेटा मैंने नहीं बनाया, ये डेटा मैंने कलेक्ट नहीं किया, इसमें मैंने कुछ एनालिसिस नहीं किया है, मैंने एज इट इज इस सोर्स से ये डेटा उठाया है. मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये डेटा बनाना नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव था इस डेटा को एग्जाम्पल के तौर पे यूज करके आपको क्रोनोलॉजिकल डेटा के बारे में समझाना. गेटिंग माय पॉइंट?
जी Yes, sir. जी इसलिए ऑलवेज मेंशन सोर्स। सेकंड थिंग, अब आप जब प्रेजेंटेशंस बनाएंगे आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, टीचर्स आपको प्रेजेंटेशन देंगे, आप उसमें कुछ इमेजेस वगैरह यूज करेंगे उसको अच्छा बनाने के लिए, एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स अपनी स्लाइड के एंड में डालिए और उसमें लिखिए सोर्स गूगल। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता, आपने गूगल पे सिर्फ डाला, लेट सपोज आप एंटरप्रेन्योरशिप की कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आपने लिखा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और उसमें एक अच्छी सी इमेज निकल के आई, आपने उसको डाउनलोड किया और अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर दिया। एक छोटा सा वहां पे लिख दीजिए इमेज सोर्स स्पेस गूगल, इमेज सोर्स गूगल, खत्म। सो दैट बिकॉज अगर आप उस इमेज को अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको उसका क्रेडिट तो उस इंसान को देना चाहिए ना जहां से आपने ये इमेज ली है, आपने खुद ने तो बनाई नहीं। सो दिस शोज योर ओरिजिनलिटी। और एक प्रोफेशनल तरीका होता है, जब भी हम कहीं से कोई डेटा उठा रहे हैं, जब भी हम कहीं से कोई कोट उठा रहे हैं, उसका सोर्स हमें हमेशा मेंशन करना चाहिए। जस्ट एज अ प्रोफेशनल एटिकेट आई एम एडवाइजिंग यू ऑल। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Right? Yes, sir. So today let us keep it over here only and wait. So I am just sharing the link of a Google form as a question, as a attendance part. Just stay there on the meeting.